Okay, so this is the Betal Tekri, and I've been to this place many times, and every time I come to this place, it has different colors. And this is something I told every participants. So today I'm just waiting for my participant, and I thought while waiting, oh, why not do some nature photography? And so I'll be more ready when participant arrive. So I have around 20 minutes with me to find some good composition. I'll just roam around this place while waiting at the meeting point. Today my focus will be to capture the backlight. I'm just finding good leaves where I can produce good backlight composition. I'm using my Nikon D750 with my 7300 lens. I'll just rate the ISO to 400, and my shutter speed is 1 by 250, aperture 5.6. I'm on 300 full zoom. My vibration reduction stabilization is turned on the lens. Capturing leaves in nature is always fascinating, and there is no end of creativity. Yeah, this is something artistic. It's a always unique experience when you capture a dry leaf and a fresh leaf, because dry leaf will give you kind of orange red feel, and it's totally amazing. Let's start towards the quarry, uh, my second meeting point. Ah, this is really cool. Amazing. One of the best shot I got.
also good. Okay, usually तो हम ना इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं. So we have already met in previous workshops. So if you want, you can just tell me about the which camera you are carrying today, which lens. Actually bought a body and one lens. R8, Canon R8 and 100 400 mm. 400 mm. 100 400. Okay, just bring it out. Yes. Actually, I was planning some backlight shot. हाँ. तो मैंने थोड़ा सा शुरू में किया है, अभी भी है चांस. So अभी that's है why I तो hold you here वैसे भी only कुछ नहीं कि होगा. यहाँ पे थोड़ा समझाएंगे ना बैकलाइट के अच्छे यहाँ पे शॉट्स हैं. That's what I observe. ठीक है. So you have Canon R8. Yes, R8 and 100 400. 100 400. So it's really cool. So for camera settings, we'll have the full zoom. Full zoom हम क्यों कर रहे हैं? Because we want to isolate the subject from the background. 400 mm. 400 mm पे आपका क्या है, जो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, हाउ इट मेजर्ड डेप्थ ऑफ फील्ड, इट मेजर्ड ऑन द फोकल लेंथ. जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है. Correct. और एपर्चर जितना कम होगा, स्मॉल एफ नंबर, ना blur हो जाता है. यस, लार्ज एपर्चर स्मॉल एफ नंबर. तो जितना एपर्चर लार्ज रखेंगे, स्मॉल एफ नंबर रखेंगे, उतना डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगा. एंड द थर्ड एस्पेक्ट क्या रहता है? ISO है, shutter speed है. फॉर डेप्थ ऑफ फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द सब्जेक्ट. तो जितना आप पास में जाएंगे, तो जितना अलाउ करता है आपका लेंस, गो नियर टू दैट. जैसे फॉर 300 mm आई हैव लिमिटेशन ऑफ 5 फीट, तो इसका अराउंड 6 फीट रहेगा. ओके. ये तो 5.6 to 8 है. 400 हाँ. पे 8 रहेगा. For 400 mm पे 8 रहेगा. 8 फीट, मिनिमम 8 फीट. F8 रहेगा. नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एपर्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. Okay. डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द कैमरा 300 mm पे मुझे 5 फीट मिनिमम डिस्टेंस रखना पड़ता है. अगर मैं उससे ज़्यादा पास में जाऊँगा, इट विल नॉट अलाउ मी टू टेक फोकस. फोकस ही नहीं होगा, मुझे मैनुअल फोकस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 400 mm में इट शुड बी अराउंड 6 फीट. तो वो आपको जज करना है खुद. बट वी विल ट्राई टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल ऑन 400 mm. ओके. तो सर एक्चुअली F8 पे हमें डेप्थ मिल सकती है पीछे? Yes, 400 mm है. एंड इफ़ यू गेट रियली क्लोज, यू विल सी द डिफरेंस. वो आपको मैजिक दिखेगा आज. तो अभी व्हाट आई प्लान्ड फॉर दिस वर्कशॉप, अभी यहाँ पे हम बैकलिट के लिए हम कंपोजिशन करेंगे. उसमें कैमरा सेटिंग्स आपको वही जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही रखना है. 400 कर देंगे अपना फोकल लेंथ को. शटर स्पीड विल बी मिनिमम आपकी जो शटर स्पीड रहेगी वो 1/400 रहेगी. मैनुअल मोड में रहेंगे. एंड ISO विल बी 400. We'll start with 400. Okay, fine. And see how the results coming. Let's see. ठीक है. For Okay. बाकी उसके बाद we'll nature में जब when we come to nature photography, it's all about texture and shapes. correct. So Abstracts. we have to abstract. We have to find good abstract in nature. To create a good abstract, trick is get close again. जितना आप क्लोज जाएंगे उसके सब्जेक्ट के, उतना उसका वो टेक्सचर निकल के आएगा. एब्स्ट्रैक्ट भी आपको उसमें अच्छा सा क्रिएट होता हुआ दिखेगा. सो दैट्स द ट्रिक वी यूज़ इन नेचर फोटोग्राफी. उसमें आपको यूनिक शेप्स, टेक्सचर्स आइडेंटिफाई करने हैं. हाउ यू कैन प्रेजेंट इट इन यूनिक वे, क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल का आर्टिस्टिक अपना विजन रहता है. सो वी हैव टू डेवलप आवर आइज टू सी द आर्टिस्टिक फील इन दैट सब्जेक्ट. तो यहाँ पे लीव्स देखेंगे ना, सो देयर इज बैकलाइट कमिंग. तो देखो कैसे कंपोज कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो शो यू. एक मैं कंपोजिशन लेके मैं आपको शो करता हूँ. यू विल ऑल्सो ट्राई. एंड यू हैव स्टेबलाइजेशन ऑन. Yes. Stabilization. एंड वेयर इज द हुड? Hood lens? इसका मिल ही नहीं रहा है ही नहीं मार्केट में. माय गॉड. मैं सर्च करके बताऊंगा बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी. मैं शॉप पे ही देखा था. यहाँ पे मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है डिटेल. यस, गेट एज क्लोज एज पॉसिबल.
बस आइए सजद और इसमें और एक क्या रहता है कि अपना ग्रीन लीव्स पे अगर बैकलाइट शॉट लेंगे ना, एंड यू विल हैव डिफरेंट फील कंपेयर टू ड्राई लीव. यहाँ पे अभी से मुझे 640 करना पड़ा ISO, तभी भी इतना आया है. ओके, हाँ ये तो व्हाट इज मीटरिंग मोड? इवैल्यूएटिव. हाँ ये लेट ही है. ठीक है. मे बी F8 पे है. मे बी थोड़ा और उसको फिल करना पड़ेगा. तो ग्रेन नहीं आएगा. हाँ यस. थोड़ा और फिल करना पड़ेगा, थोड़ा और उसको जूम आउट करना, उसको जूम इन करना पड़ेगा आपको. इट मीन्स यू हैव टू गेट मोर क्लोज. तो यहाँ पे इसमें क्या, इंस्टेड ऑफ गोइंग हेवाय ना, बेटर टू फाइंड समथिंग नियर टू यू. जैसे ये स्मॉल लीफ है, इस पे आप कर सकते हैं. गेट आई लेवल, गेट लो, थोड़ा सा बेंड करो नी को, गेट ऑन द आई लेवल. एंड यू विल ऑल्सो फील कि अभी थोड़ा कंट्रोल आ रहा है. यस एग्जैक्टली. तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ना, वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है. व्हेन वी हैव गुड कंट्रोल ऑन द डिवाइस, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस. स्टिल थोड़ा टाइम लेगा. नाउ उसको आपको पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को राइट, टेक राइट ऑन द सब्जेक्ट. यस, गॉट इट ना. तो हम यहाँ पे क्या है, जो रिम लाइट क्रिएट हो रहा है ना, अपने को वो कैप्चर करने का ट्राई करना है. तो यहाँ पे अगर हम लो जा रहे हैं तो पीछे ब्राइट आ रहा है, अपने को थोड़ा सा डार्क शेड लाना है बैकग्राउंड में. And you are shooting in RAW or JPEG? RAW only. RAW plus JPEG. Okay. तो RAW में क्या है? If any problem with the white balance, we can correct in the post processing. सर ये हो रहा है ना एग्जैक्ट फोकस? आप मतलब एक बार Yes, zoom yes. करके देखिए. हाँ, yes, perfect. Nice. So further we can improve composition in post processing by cropping. उसको further crop करके we can improve. अगर मुझे मैंने फोकस किया तो सेंटर पे फोकस हुआ ये. बट मुझे सब्जेक्ट को थोड़ा फ्रेम में लेफ्ट साइड को लेना है. हाँ, इसमें वन शॉट में क्या बेनिफिट रहता है, व्हेन यू लॉक द फोकस इट विल लॉक. वो रिकैलकुलेट नहीं करेगा, आप रीफ्रेम कर सकते हैं उसको. ओके, मैंने थोड़ा अगर सा lock एक बार किया तो मैं आई कैन थोड़ा सा रीफ्रेम. यस, मूव द फ्रेम, इट विल नॉट लूज द फोकस. Come here.
हेलो। वाह अच्छा फोटोज क्लिक कराना आपने वाह दिस वन। या इवन आईएसओ थोड़ा बढ़ाना हाँ पड़ेगा शायद। थोड़ा आइस में नहीं, आइस तो ठीक लग रहा है, थोड़ा जूम करना है ओनली। यू हैव टू फिल द फ्रेम। अपने को क्या है ना, यहाँ पर फिल करना है इसको। अगर Okay. बैकग्राउंड देखोगे ना पूरा हाँ। खत्म, पूरा फिनिश, इट्स अ वॉलपेपर काइंड ऑफ शॉट। करो इस पे ट्राई। एंड आई एम व्हाई आई एम टिल्टिंग इट, क्योंकि अपने को फोटोग्राफी में क्या है, अगर लाइन डायगोनल रहेगा ना इट विल हैड मोर इंटरेस्ट हाँ। कंपेयर टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो मैंने थोड़ा उसको ऑन कैमरा ही थोड़ा टिल्ट किया है, हल्का सा उसको टिल्ट करना है। कम हियर, फर्स्ट गेट द गुड एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहना चाहिए ना। यस नाइस। थोड़ा इधर से एंगल, हमारा एंगल सारा मैटर करता है। यहाँ से अगर आपको बैकग्राउंड देखेंगे ना, और बट यू विल गेट फ्रॉम हेयर इट विल बी लिटिल डिफरेंट। यहाँ से अगर यस ओके मे बी डेप्थ ज्यादा yes मिल रहा है। yes, because of depth we are getting good clean background. Get little low. Yes, थोड़ा सा, yes perfect. थोड़ा उसको ना you have to just tilt the camera यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ना। When you are struggling with subject ना, ये आगे अपना फोकसिंग रिंग रहता है। हाँ तो फोकसिंग रिंग से यू कैन एडजस्ट द फोकस। वंस यू गेट गुड अगर फोकस ऑटो पे है तभी होगा तब ये? भी Okay, तब भी okay. एनी टाइम इट्स ओवरराइडिंग फोकस। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद फोकस यू कैन यूज फोकसिंग रिंग। तो दीज आर द की नोट्स। तो फॉर टुडेज वर्कशॉप आई विल कवर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके तो एक एक करके आप बोलना ठीक है एंड देन विल कीप डिस्कस अबाउट बीच बीच में। चलेगा। Rule of thirds, yes. When we are dividing frame into with the two horizontal, two vertical lines, where they are crossing each other, वहाँ पे वो उसको हम focal point बोलते हैं. We call that focal point, and we have to keep our subject around those focal point. जो interesting उनका कहते हैं part रहता है, we have to make it around rule of third. जैसे कि eyes, ओके living subject की अगर बात करते हैं, so we keep that subject eyes around rule of third focal point. लैंडस्केप लेना है इस लेंस पे 100 mm पे 100 mm पे बैकग्राउंड ब्लर नहीं होना चाहिए। blur नहीं होगा ना। when you are 100 mm it will make sure that most of the things are in good focus, and further you can improve the depth of field by going to large f number. When we have large f number it will be small aperture, it will large aperture, large f number, small aperture. So when we have small aperture depth of field will be huge, it will increase. f11 पे बोलते हैं, f11 to f16 that's preferred for landscape photography. From f11 on most of the lenses you will get infinity depth of field. Infinity means from nearest point to farthest point it will try to cover everything in almost a good focus, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि माइल्स अवे भी अगर बिल्डिंग है, माउंटेन है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट। ओके हाँ इजीली उस साइड हम ट्राई कर सकते हैं। जाके थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरह से लाइट आ रहा है ना पीछे से, बैक लाइट का, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोजिशन ट्राई कर सकते हैं। हाँ यस, वाह आपके हर फ्रेम में ना एक फोकल पॉइंट रहना चाहिए। अगर किसी फोटो में फोकल पॉइंट नहीं है ना तो इट्स
not considered as a good, we can say, the quality of composition. उसमें focal point कुछ तो रहना चाहिए. तो यहाँ पे मेरा focal point ये है. लीफ है. Everything is quite similar, but ये थोड़ा अलग से उभर के आ रहा है. और जो सराउंडिंग आई रियली लाइक, जिसका लाइट का सब सराउंडिंग है ना, क्रॉप करके फर्दर एनहांस होता है ये. ड्रीमी सा इफेक्ट, थोड़ा ड्रीमी इफेक्ट सा आता है इसमें. ड्रीमी इफेक्ट आया है. इसका देखते एफ हो? नंबर क्या है? 5.6 जो इतना लोवेस्ट अलाउ है मुझे. ओके. बट यू विल गेट द सेम क्वालिटी, नो वरी. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा, जो इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट आपको क्या लग रहा है? ओवरऑल फ्रेम में क्या लग रहा है इंटरेस्टिंग? वो पत्ता तो दिख रहा है. बैकलाइट, ये जो बैकलाइट आ रही है ना, ये जो चमक रही है backlight, ना, हाँ, ये edges पे अलग backlight से आ रही है. बैजेस पे बैकलाइट आ रही है ना, दैट इज द इंटरेस्टिंग. कूल. हाँ, थोड़ा सा इसको, एक्चुअली क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? इफ इवन इफ यू डोंट हैव सब्जेक्ट राइट इन दैट अराउंड फोकल पॉइंट, आपके जो लाइंस उसको रीच कर रहा है ना, दैट्स लीडिंग लाइन. दैट लीडिंग लाइन शुड कम फ्रॉम द कॉर्नर्स. ओके. उसको आप ऐसे कंपोज करें, इट्स कमिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स. इवन द लीफ यू कैन हैव इन द मिडल. सब्जेक्ट आपका पूरा मिडल में रह सकता है, बट उसको लिए कोई लाइन उसको रीच करना चाहिए. तो लाइन है जैसे आपके आपने पास. वो डायगोनल वाला दिया यस था. यस. ओके ओके. So you have to make that stem coming from the corner. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. This one. थोड़ा और ब्रीड करना पड़ेगा. वाह. ये यहाँ पर. This one. तो उसमें क्या है, उसका शेडो आ रहा है. शैडो. जल्दी से नीचे जाते हैं क्वारी में, यस. एंड वी गेट गुड बर्ड्स. तो मैं ड्राइव लीव्स की जो बात कर रहा था ना, यस दिस इज. यस. तो इसका जो बैकलाइट इफेक्ट है, इट विल बी टोटली डिफरेंट कंपेयर टू ग्रीन लीव. Texture, colors, rim light. Like a macro. Zoom lens में that's the benefit. You can mimic that macro work. Always try to take a photo of same subject from different angle. उसमें repetition नहीं feel होगा. Okay. And you will know कि वो किस angle पे कौन कितना अच्छा perspective आ रहा है. Okay. It will further enhance your composition technique. हाँ. तो you will not feel bored. हाँ. वैसा नहीं होगा. And आपको realize होगा that if you will take that subject photo from this angle, it will look more good. हर एक subject का एक best side रहता है.
Even recently I was just studying about this nature portrait photography in nature. मतलब नेचुरल लाइट में उसका मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था. आई फाउंड वन गुड इन्फॉर्मेशन कि इफ़ यू आर डूइंग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इन नेचुरल लाइट एंड यू वांट टू यूज़ आर्टिफिशियल लाइट ऑल्सो, मतलब आपको बॉक्सेस, सॉफ्ट बॉक्स, फ्लैश यूज़ करना है. ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं, पोर्ट्रेट की फ़ोटो. तो व्हाट ही वाज सेइंग कि डोंट ट्राई टू कम्पीट विद नेचर लाइट. आप उससे कम्पीट कर ही नहीं सकते हैं. सनलाइट के साथ अगर आप कम्पीट करने की ट्राई करेंगे, इट मीन्स यू आर गोइंग इन अ डायरेक्शन कि इसका एंड ही नहीं है कोई, एंड यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट. तो बेटर है टेक इट एज शॉट एंड सी हाउ सन इज हेल्पिंग यू. देखो वहाँ पे वो किस पार्ट में हेल्प कर रहा है. सो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है पोर्ट्रेट का, उसमें मोस्टली हम 2 लाइट्स 3 लाइट्स के साथ काम करते हैं. बेसिकली उसमें एक हमारा मेन की लाइट रहता है, एंड द वन इज बैक लाइट, थर्ड इज फिल लाइट. तो आप नेचर से देखो आपको क्या मिल रहा है इन तीनों में से, और जो नहीं मिल रहा है वो आप देने की कोशिश करो. देन यू विल हैव ए गुड क्वालिटी आउटडोर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी. So it was good learning, but you can apply the same rule anywhere when you are doing outdoor photography. वहाँ पर आप रूल अप्लाई कर सकते हैं. But it was really sensing ना. हाँ, सही बात है. Instead of going against, उसको यूज़ करो ना आप. It's the best way. अब to make that light softer, अगर sunlight harsh है, आप diffuser यूज़ कर सकते हो. एक diffuser sheet लगा सकते हो. To make it softer. हाँ, yes. But you have to manipulate, you have to customize. So that was really good learning. But again, when we are taking a bird photo, keep in mind कि background क्या है. Try to find something good, natural background, and try to avoid white sky. लास्ट टाइम मुझे इसका बैकलाइट का बहुत अच्छा शॉट्स आया था. सो आई कैन स्टिल फील कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है. Wow. We can further enhance in editing. We have to get as close as possible. जितना उसके close जाएंगे, we'll get that quality. Nice. I really found nice. Yeah, something really good. Always take 2-3 photos when you find something really good. Wow. Can you notice? Yes. So, because when we take 2-3 shots ना, it will make sure कि हमारा एक शॉट तो उसमें शार्प रहेगा. कैमरा कितना भी कैपेबल हो, हाउ कैपेबल इट इज, इट कैन लूज द फोकस. चाहे आपकी सेटिंग्स परफेक्ट रहेंगी, एवरीथिंग इज गुड. उतना डेप्थ नहीं मिल रहा वैसे. ठीक है ना. थोड़ा एफ पॉइंट कम कर सकते हैं. व्हाट इज द फोकल लेंथ? 400 400 पे. मेरा 300 है, मुझे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो आई विल फर्दर क्रॉप इट. आपको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है. यू आर गेटिंग राइट ऑन द कैमरा. इट्स गुड. और ज़्यादा पास जाने देगा क्या? यू कैन ट्राई, जस्ट सी द लिमिट. ओके, इफ इट्स गिविंग यू देन इट्स गुड. क्योंकि जितना पास जाएंगे यू विल फर्दर इम्प्रूव दैट क्वालिटी. इफ़ यू फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक सा, तो प्लीज़ शेयर. मुझे भी सीखना है. आई वॉन्ट टू लर्न, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि दैट अदर पर्सन इज हैविंग रियली गुड विजन.
हाँ तो हाँ वैसा इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जो दिख रहा हूँ वही ठीक है, करेक्ट। मे बी यू हैव समथिंग फाउंड जो मेरे को ऑब्जर्व ही नहीं हुआ है। आपने जो डायगोनली लिया था तो मैंने एक ऐसे ये सीधा ट्राई किया, बैकलाइट मिल रहा है तो इसमें सेम फ्रेम इसमें क्या अगर है, मैंने डायगोनली ली तो ज़्यादा अच्छी दिख रही है। हाँ, एंड देयर इज वन 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 मोर थिंग कि उसमें क्या है ना, पीछे ब्राइट आ रहा था। हाँ सो अगेन द यूजेज को किस तरह से फोटो को यूज करना है, करेक्ट। यू कैन यूज दैट। देयर इज नथिंग बैड इन फोटोग्राफी, कुछ भी बुरा नहीं होता है। अगेन वी वांट टू यूज दैट, पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि वो अच्छा है कि खराब है। यूजेज उसका डिफाइन करता है। इवन आई नो फोटोग्राफर जो ब्लरी फोटो ही लेते हैं, दे नेवर टेक फोटोज विद गुड शार्प। वो कुछ भी फोकस में लेते, सब कुछ आउट ऑफ फोकस लेते हैं, एंड दे आर वर्ल्ड फेमस। पर्सपेक्टिव। उसको उन्होंने कॉन्सेप्ट का नाम दिया ड्रीमी शॉट्स। सो जॉनरा ही बना दिया। पता नहीं, बट आई फाउंड इट, कहीं तो मुझे कुछ रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड दैट वो सिर्फ आउट ऑफ फोकस फोटोज ही लेते हैं, ओके। वेल प्लान करके आउट ऑफ फोकस विद पर्पस। हाँ, एंड दैट गाय आई थिंक स्टार्टेड बिकॉज कि उसके पास ऑटोमेटिक वाला फोकस वाला लेंस नहीं था, तो मैनुअल लेंस था, एंड उसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। उसको फर्दर कितना एनहांस कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, द लीव्स अराउंड आर डार्क, जो ग्रास एरिया है वो और डार्क है, वहाँ पे फिर भी थोड़ा बैकलाइट था, यहाँ पे कंप्लीटली डार्क हो गया है। And if we are finding multiple colors in photo na, that again it will further enhance that photo. Nice, it's coming. हाँ ये सर, ये लैंडस्केप व्यू से अच्छा ये दिख रहा है। यस, तो मतलब आइडियली लाइट की तरह जैसे ना, वो दिया जैसे। पोर्ट्रेट का यूज नहीं करना चाहिए। डिपेंड्स वो एक्चुअली व्हाट आई एडवाइस कि ट्राई टू डेवलप योर आइज फॉर वाइडर फ्रेम, वाइडर के लिए डिफाइन करें, बट इफ यू वांट यू कैन मेक इट पोर्ट्रेट टू, डिपेंड्स। उसको रोटेट करके देखें पोस्ट प्रोसेसिंग में। और यहाँ पे इस फोटोज में क्या आपको अलग दिख रहा है, बैकग्राउंड में ग्रीन है और ये थोड़ा ऑरेंज शेड में। सो व्हेन वी आर मिक्सिंग कलर्स इट्स फर्दर एनहांस। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैश लाइट नहीं आया अपने को। कैश लाइट आए तो परफेक्ट शॉट हो जाता है।
इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, ब्रिंग द राइट लेंस फॉर नेचर फोटोग्राफी। तो इसमें नेचर फोटोग्राफी में इट्स क्वाइट ब्रॉड सब्जेक्ट, राइट, इतना छोटा नहीं है। इसमें आपका वाइल्ड लाइफ आता है, मैक्रो आता है, मैक्रो से लेके लैंडस्केप। सो एवरीथिंग। तो व्हाट लेंस यू आर ब्रिंगिंग ना, जस्ट वी हैव टू डिसाइड कि आप किस तरह की फोटोग्राफी करने वाले हैं। इन दिस वर्कशॉप आई आस्क्ड टू ब्रिंग जूम लेंस। वो इसलिए क्योंकि आप उसको लीफ से लेके बर्ड तक यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स हैविंग वर्सेटाइल यूजेज। अगर आप मैक्रो लेंस के साथ आते देन यू विल बी लिमिटेड, यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर मैक्रो वर्क। बट जूम लेंस के साथ वी कैन मिमिक दैट मैक्रो वर्क टू। यस, तो दैट्स वाई आई एडवाइस कि मिनिमम 250 mm के साथ आएँ। इफ़ नॉट पॉसिबल देन देर इज़ ओनली वन डिसएडवांटेज कि आपको सब्जेक्ट के और पास जाना पड़ेगा। इवन 50 mm के साथ अगर कोई ज्वाइन कर रहा है देन 50 mm मीन्स यू हैव टू गेट रियली क्लोज। यस, सो उनके लिए मैं क्या एडवाइस करता हूँ, फाइंड सब्जेक्ट जिसके पास आप जा सकते हैं। ओके, फाइंड समथिंग विच वेयर यू कैन गो वेरी मच क्लोज टू योर सब्जेक्ट। तो हमें जो लेंस का एक्चुअल पोटेंशियल पता लगता है वो पास जाके ही पता लगता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी। अब ये क्रॉप सेंसर के कुछ एडवांटेज बताया सर। हाँ। एडवांटेज विद क्रॉप सेंसर कैमरा बॉडी। Yes, again, crop sensor means it's a cropping 1.5 right on the camera. तो 1.5 into, हाँ हाँ हाँ, so आपका अगर 300 mm है तो वो 450 mm हो जाता है। ओके, इज इट? Yes, आपकी क्रॉप बॉडी है तो ये अरे, 400 frame आपका crop कर रहा है 400 will be 1.5 1.6 कैनन है ना ये, राइट, तो इसका आई थिंक 1.6 रहता है, 1.5 1.6। यू हैव टू चेक द मैनुअल कि कितना कर रहा है। ओके, बट इसमें भी any कुछ kind of disadvantage- any kind of cropping, any kind of cropping, it will degrade the quality. हाँ, कितना भी क्रॉपिंग, कैसी भी क्वालिटी की हो, कोई भी हो क्रॉपिंग, वो डिग्रेड करता ही करता है। और कोई भी जूम लेंस है, जब आप जूम कर रहे हैं ना, इट्स यू आर मेकिंग द पिक्सल्स लार्जर, हाँ, ब्रिंगिंग समथिंग नियर। तो जितना भी उसको एवरेज जा रहा है वो कहीं उसका क्वालिटी लूज होता है, बट इट्स वेरी मिनिमल, वेरी मिनिमल। यू कांट ऑब्जर्व विद आईज ना, वी कैन निगलेक्ट, यस, इग्नोर कर सकते हैं उसको हम। सो इट्स नॉट दैट कि आपको ईजिली नोटिस होगा फोटोज़ में। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट राइट लेंस। तो मैक्रो के लिए तो मैक्रो लेंस हो गया, इट्स इजीली कोई भी मैक्रो लेंस यू कैन कैरी। एंड फॉर मैक्रो लेंस यू शुड हैव बेसिक लाइटिंग किट, एक फ्लैश लाइट रहना चाहिए एक्सटर्नल। डिफ्यूजिंग के लिए यू कैन क्रिएट योर ओन डिफ्यूज़र फॉर द फ्लैश, या मार्केट में भी अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैक्रो का When we are talking about macro, उसका क्या when we are talking about macro, it's giving you ability to crop 100%. 100%. 1:1. ओके, जो हमारे lenses रहते हैं उनका क्रॉपिंग रेशो यहाँ डिफाइन रहता है। क्रॉपिंग रेशो 1:4.5। तो ये इट मीन्स अराउंड 50% तक ही क्रॉप कर सकते हैं। ओके, इसमें दिया हुआ है क्या ये नहीं, कैनन में नहीं है। कैनन का आपको मैनुअल में चेक करना पड़ेगा, लेंस में गूगल करना पड़ेगा। मतलब उसका क्या बेसिक डिफरेंस? वो आपको डिफाइन करता है कि कितना क्रॉपिंग कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द पिक्सल्स, अच्छा, विदाउट ब्रेकिंग द पिक्सल्स। ओके,
इसलिए फिर वो मैक्रो इसलिए macro कॉस्टली होता होगा। है 100%। 100 यू कैन 100% जूम करेंगे तब भी पिक्सल्स उसके ब्रेक नहीं होंगे। इफ़ यू गो बियॉन्ड 100% देन इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द पिक्सल्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉस्टली। एंड जितना अपना हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे ना, दैट विल इम्प्रूव ओवर फोटोग्राफी इटसेल्फ। इवन इफ इट्स अ लीफ, इट्स अ ट्री, इट्स अ बर्ड, एनिमल, एनीवन, द मोर यू रीड अबाउट इट, जितना डिटेल्स उसके बारे में पता लगेगी, यू नो कि वो किस सीजन में किस टाइम में ज़्यादा अच्छा दिखता है। हाँ, उसका लैंडस्केप भी अच्छा आता है, लाइट अच्छी होती है। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, राइट? Yes. When we are talking about landscape photography, na, we should include something in the foreground too. कुछ तो इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहना चाहिए। और अगर मुझे पूरी ट्री ही एक दिस इज द काइंड ऑफ गूगल एग्जाम्पल। तो गूगल में आपको ऐसा मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट। राइट। दैट शुड बी इन सेम फोकल प्लेन। जब हम फोकल प्लेन बोलते हैं ऑलमोस्ट इन द सेम डिस्टेंस, तो ज़्यादातर जो एक लाइन में रहेंगे सो इट विल कम इन गुड फोकस। तो यहाँ पे मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, कलर, एक सेपरेट कलर है, दिस वाज। ये गोल्डन लाइट में बहुत अच्छा आता है जब सन थोड़ा नीचे होता ना, हाँ, जैसे सारे चमक के आते, जैसे वो लीफ चमक रहा है ना, हाँ, yes, तो यहाँ पे बंचेस में शाइन होते। हाँ। अभी सुबह भी नेक्स्ट आ टाइम जाता अभी हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, आई विल डायरेक्टली कम हियर। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है ना, यस, स्टैंडर्ड हो रहा है। मानसून में बहुत अच्छा लगता है इसका। तो मानसून में थोड़े वेट हो जाते हैं ना, और अच्छा आता है इसका। उसको थोन आर्ट फोटोग्राफी बोलते हैं। ओह, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए डिफरेंट जेनर ऑफ फोटोग्राफी। हॉर्न्स का गूगल में सर्च करो, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा उस पर। दिस इज द सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, अपने को जो बेस्ट जो एंगल मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, बैकलाइट की वजह से। तो 400 जूम, ये तो रूल ऑफ थंब है। यस, कीप इट ऑन दैट ना, कीप इट। ISO 200 पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। शटर स्पीड थोड़ा हाई रखा है मैंने लाइट को और ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, दिस वाज ISO 400, दिस वाज ISO 200, रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स रिमेन सेम। एक्सपोजर कंपनसेशन मैंने -1 रखा है टू फर्दर डार्कन द बैकग्राउंड। थोड़ा सा और बंचेस में लाओ उसको, ग्रुपिंग में फिल द फ्रेम ना, ओके। फ्रेम को फिल करने का ट्राई करना है अपने को।
Come here. Yes. It's really cool. I found something really interesting. क्योंकि अभी क्या है ना, वो उसका ब्रांच पूरा ड्राई हो चुका है, वो थोड़ा ऑरेंज शेड में जा रहा है, ये देखो. Oh, nice. Correct. ट्राई थोड़ा सा और साइड में है, लिटिल बिट. हाँ, इतना सा. It's really coming. Amazing. हाँ, शटर स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करना था. हाँ, शटर स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करोगे ना, बैकग्राउंड थोड़ा और डार्क हो जाएगा. हाँ, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको. यू आर रियली क्लोज. इसको ट्राई करो मिमिक करने का. आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा. यू आर ऑन 400. क्रॉस कर रहा है. इसमें क्या है ना, What आपको am I थोड़ा missing? सा ऊपर से एंगल करना है. डार्क शेड को थोड़ा नीचे लेकर आना है. और शटर स्पीड क्या है? Okay. Shutter speed, I guess 650 है. इसको थोड़ा और इंक्रीज करो. 640. और इंक्रीज Okay. करो. आई एम ऑन 300 mm विद शटर स्पीड 1/640. आप 400 पे हो. यू हैव टू टेक वन मोर स्टेप. एक स्टेप और ऊपर जाएंगे शटर स्पीड में. Got it? Maybe. Yes, it's quite close. At least we got in the middle. हाँ, इसमें यहाँ पे क्या है, background हो गया. अपने जो क्रॉस को डायरेक्ट इन द मिडल लाया है. मैंने हाँ, क्या हाँ, क्रॉस को थोड़ा सा साइड करा है. Okay. थोड़ा more on the left. But it's quite similar. We can further enhance in cropping. उसमें एडिटिंग में हम उसको ना अलग अलग तरीके से टिल्ट करके, फ्रेम रीफ्रेम करके, वी कैन सी कि फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, कंपोजिशन को. बट एक बार आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, यू ट्राई टू डू राइट ऑन द कैमरा. Okay. आपका क्रॉपिंग का जो एफर्ट है वो एडिटिंग में कम होना शुरू हो जाता है. इट टेक्स टाइम कि आपको क्रॉप करने की जरूरत ही ना पड़े. इट टेक्स रियली एफर्ट. आई स्टिल डू क्रॉपिंग सम टाइम. सो इट यस, वो डिस्ट्रैक्शन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा है, देन वी हैव टू क्रॉप इट. Wow. जो ब्रांच पे हाईलाइट हो रहा है और हाँ. ऑरेंज लीव है, इट्स ऑल स्टैंड आउट. लाइट बहुत ज़्यादा Light. हर्ष, बहुत ज़्यादा हर्ष है. इसमें हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं, वी कैन कवर एंड बाय समथिंग, और उसके बाद उसको आप ऐसे शेडो में ट्राई कर सकते हैं. Shadow ज़्यादा नहीं हो रहा है उसमें? अब हो तो रहा है, बट बेटर देन दैट हाईलाइट. करो. नहीं, थोड़ा बढ़ाना है. आईएसओ मत बढ़ाओ, शटर स्पीड कम करो. आपका जो शटर स्पीड लिमिट है 400 का है ना. स्टेबलाइजेशन के साथ 1/400 by you will get shot. Okay. तो 400 1/400. and ISO 200. 200 तो नहीं. शेडो, when you are in the shadow, then ISO 400.
नहीं आया? नहीं नहीं चाहिए वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, नाइस। कैसा है ये? अभी आया है? हाँ तो अच्छा तो है ना। यहाँ पे बस ये क्या सामने एक ब्रांच आ रहा था ना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना था आपने, इसको हम हल्का सा पुश कर देते। ओके। इट वाज रियली गुड। ये थोड़ा हाईलाइट होके आ रहा है ना ड्राई लीफ। हाँ और सर अगर शैडो निकालते हो आप तो देखो कौन सा बेटर लग रहा है? शैडो वाला। शैडो वाला अच्छा लग रहा है ना? सॉफ्ट लग रहा है थोड़ा। यस। मैं भी ट्राई करूं? ओके ये है हार्श लाइट। हाँ नहीं होता हर साइड में ज़्यादा कुछ। नहीं है, आप कवर करना, आई विल ट्राई। यस। हाँ दैट्स इट। ठीक है, आई फर्दर एनहांस। थोड़ा सा शटर स्पीड मेरा थोड़ा हाई निकल गया, थोड़ा सा कम करना चाहिए था एक बार। शेडो में क्या रहता है प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। शेडो का जो मेन जो इशू रहता है वो रहता है कि आपके कलर्स डल हो जाते हैं, उभर के नहीं होते, तो आपको एफर्ट करना पड़ता है कंट्रास्ट पे। इन एडिटिंग यू कैन इम्प्रूव दैट इजीली, फिक्स दैट डल कलर। तो यूजुअली जब हम ओवरकास्ट में निकलते हैं ना फोटोग्राफी के लिए, हमारे पास सेम ऐसा प्रॉब्लम आता है। इन रियल टाइम वी फेस द सेम प्रॉब्लम कि कलर्स अच्छे नहीं आते, तो वी हैव टू फिक्स इट। कलर्स सारे डल आएंगे, बोल्ड कलर्स नहीं आते उसमें। वी कैन फर्दर एनहांस इन एडिटिंग। एडिटिंग में इसको बहुत ज़्यादा प्ले कर सकते हैं, क्रॉस प्रोसेस करके, कलर को सैचुरेट डीसैचुरेट करके, सो देयर आर एंडलेस। फोटोग्राफी में स्पेशली इन द DSLR कैमरा वी स्ट्रगल समटाइम कि जहाँ पे कलर बहुत डल है, डार्क है फोकसिंग में, तो I always advise to try to take a focus from something which is brighter. Okay. So camera is more capable to take good focus from brighter elements compared to darker elements. Okay. Okay. This is the final composition. Nice. तो यहाँ पे मुझे क्या अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं टेक्सचर के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। दिस मिडल पार्ट लाइन स्ट्रेट हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट बैक बटन फोकसिंग। तो उसमें क्या है कि इफ़ यू आर इन द वन शॉट ना, इवन इफ द बैक बटन फोकसिंग, वो क्या कर रहा है, आपने उसको लॉक कर लिया फोकस को, फोकस लॉक करने के बाद भी यू विल बी फ्री टू रिकम्पोज। करेक्ट। तो आपको जस्ट कंपोजिशन के बारे में ही सोचना है, राइट। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि वो फोकस एग्जैक्टली वो रहा है कि नहीं। जो स्प्लिट सेकंड का रहता है ना काम, वो सारा कंपोजिशन का रहता है। हाँ। तो वो आपका स्प्लिट सेकंड कहीं पे मिस होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे नहीं पता हाउ अदर्स विल थिंक अबाउट इट, बट आई बिलीव कि वो जो स्प्लिट सेकंड है दैट मेक्स द डिफरेंस।
बाकी मीटरिंग मोड का अगर हम बात करें, मीटरिंग मोड evaluative is something which is recommended. Evaluative means camera is reading all the pixels in the frame. ओके ओके So it's reading all the pixels in the frame and then creating average of exposure. बाकी के मोड आइडियली बाकी के मोड सेंटर वेटेड रहता है 60%। जो उसका इन सब मोड्स के जो बाकी के मोड्स हैं उनका जो बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगा, एनीथिंग फ्रॉम द सेंटर, दे आर कैलकुलेटिंग एवरेज फ्रॉम द सेंटर, सेंटर वेटेड ऑल्सो 60% फ्रॉम द सेंटर। जनरली हम सेंटर में कुछ ज़्यादा रखते हैं हाँ, तो हम अगर फोकल पॉइंट को इधर उधर घुमा रहे हैं, लेफ्ट राइट लेके जा रहे हैं, देन इट मीन्स वी आर नॉट हेल्पिंग। सो हमारा फोकल पॉइंट भी सेंटर में रहना चाहिए ना। और एक बार मीटरिंग मोड हमने हाँ। फोकस कर दिया तो वो रिफ्रेम नहीं होगा। नहीं, ओके उसको वो लॉक कर देगा ना फिर वो। हाँ, मतलब इसमें एक्सपोजर लॉक रहता है, AE इसमें भी रहेगा। इसमें तो डायरेक्ट बटन रहता है AE लॉक। जो आपका शटर रिलीज रहता है ना बटन, हाँ। उसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है एक्सपोजर लॉकिंग का भी। ओके जब फोकस लॉक होता है, एक्सपोजर भी लॉक कर रहा है। So whatever the exposure reading you are getting na, it will log that exposure reading. ओके ओके This is the default function of shutter release button. कैमराज में जिसमें इसके निकॉन में कैमरा में है ऑप्शन, मेरे पास डेडिकेट बटन है। आप पहले तो मैंने Nikon इसको use क्या कर किया हुआ है, इसको मैंने फोकसिंग के लिए डेडिकेट कर दिया। इसका फंक्शन चेंज करा है, रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे वो सेम फंक्शनैलिटी शटर में भी मिल रही है। बट वी कैन हैव इट डेडिकेट बटन टू। क्या कह रहे थे आप? कुछ? हाँ, पहले से आप निकॉन यूज करते हाँ, स्टार्टिंग से निकॉन ही यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आई एम कंफर्टेबल विद द निकॉन। अभी क्योंकि मुझे इतना कैमरा सेटिंग्स में प्ले करने को नहीं होता है कैनन में, सो आई एम डिपेंडेंट कि कोई कैमरा लेके आएगा, देन आई नीड टू स्टडी। मोस्टली आई एडवाइस कि मैनुअल चेक करो, यूट्यूब पे जाके देखो। करेक्ट करेक्ट दैट इज़ द बेस्ट वे राइट टू लर्न कैमरा सेटिंग्स। बट जब तक आप इसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे ना, यू विल नॉट रियलाइज कि एग्जैक्टली सेटिंग्स कैसे काम कर रहा है। तो ये इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यू कांट आइडेंटिफाई व्हाट इट इज। इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ रियल एब्स्ट्रैक्ट। अभी चांस है तो लेट मी ट्राई फॉर अ मिनट। यस, नाइस। इसमें और अच्छा, इसमें आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, ऑरेंज शेड भी आ गया बीच में। यस इट विल ऐड फर्दर एनहांस। मेरा 50 mm है, देन आई हैव लिमिटेशन कि मुझे बहुत पास जाना पड़ रहा है उसके। ओके हाँ
नाइस। ये कौन सा वाला पे फोकस किया है? ये बीच वाला। बीच वाले पे। मेरा निकलते निकलते हमेशा कुछ ये रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मोस्टली तो ऐसा हुआ मेरे साथ, जो बेस्ट फ्रेम आया है वो निकलते निकलते ही आया है। पिछले कुछ वर्कशॉप में तो यही हो रहा है, जो जब वापस जा रहे हैं तब निकला है जो बेस्ट फ्रेम पूरे दिन का। एंड फोटोग्राफी में क्या है कि आपको एक फ़ोटोज चाहिए, जो एक दिन का एक फ़ोटो तो हो जो लाइफ टाइम जैसा रहे। फ्रेम ऑफ द डे बोलता हूँ मैं उसको, इनक्रेडिबल फ्रेम ऑफ द डे। उसमें मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें वो ऊपर डालता हूँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ़ोटो होती है। कि ये थी जो फ्रेम जो मुझे सबसे अच्छा लगा। Hello, myself Shruti. So I am basically a software engineer. मुझे नेचर और फोटोग्राफी में, बेसिकली फोटोग्राफी में ही और स्पेशली नेचर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है. सो आई केम अक्रॉस अ पोस्ट सेइंग कि नेचर फोटोग्राफी का एक वॉक थ्रू है, सुमित सर देते हैं. सो आई जॉइंड द लिंक और यहाँ पे ये एआरिया हिल्स पे हम आ गए हैं. तो लोकेशन तो सबसे पहले तो लोकेशन इज़ वेरी पीसफुल, वेरी नाइस और काफ़ी सारे यहाँ पे जॉनरा ट्राई करने को मिले. सो अर्लियर आई वाज स्ट्रगलिंग विद द कंपोजिशन, क्योंकि क्या होता है कि दिमाग में हमारे एक थॉट होता है कि ये मुझे फोटोग्राफ निकालना है, बट मेनी टाइम्स वी स्ट्रगल विद कंपोजिशन. ये एग्जैक्टली कैसे क्लिक करना है, कौन सा एंगल से क्लिक करना है, ये हमें पता नहीं चलता, तो वो थॉट निकल के नहीं आता है बाहर. तो सुमित सर ने वो एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प की और देन एंड नाउ रिजल्ट्स में डेफिनेटली आई से काफ़ी डिफरेंस रहेगा मेरा अभी. So I'll surely suggest to do some workshops with him and enroll with his photo walks. Thanks.
है।